हेलो स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास एनसीईआरटी से चैप्टर 1 कर रहे हैं. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स फ्रॉम 1.1. लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट द रिलेशन आर in set A 1 2 3 4 5 given by R equal to A comma B where A minus B is even is an equivalence relation. Show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to 2 4. चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव पार्ट कैसे करना है. हमें रिफ्लेक्सिव पार्ट में तो हमें एक एलिमेंट लेना है A से. अब a माइनस ए क्या होगा? 0. ये हमारा इवन होगा, विच इम्प्लाइज a कॉमा ए बिलोंग्स टू r. देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव. अब देखिए सिमेट्रिक कैसे. लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू a सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r. a भी हमारे a के एलिमेंट्स हैं और a कॉमा बी r में है. इट मीन्स a माइनस बी का मॉड इज इवन, which means minus of a minus b is also even, which means b minus a is even, which implies b comma a also belongs to R and R is symmetric. Now for transitive, let A, B, C three elements belonging to A such that A comma B belongs to R, B comma C belongs to R. It means A minus B is even and B minus C is even. अब आपका A minus B, B minus C even हो गया. अब आपका A minus C क्या होगा? A minus C होगा A minus B plus B minus C. इन दोनों को आपने ऐड कर दिया. is also even, which imply mod of A minus C is even. And hence A comma C belongs to R. So R is transitive. Therefore R is an equivalence relation. अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? 1 3 5 are related to each other, 2 4 are related to each other. In set 1 3 5 all elements are even, odd, all elements are odd and difference of any two is even. Difference of any two is even. Hence हमें तो मॉड के लिए करना है. मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू is even. Therefore elements of 1 3 5 are related to each other. इसी तरह से आप 2,4 के लिए लिख दीजिए. तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं इन 2 4 डिफरेंस ऑफ 2 and 4 is even, hence modulus of difference of 2 4 is even. Therefore for this set एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. अगर आपको ये भी बताना है कि इसके और इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है, तो ये एक इवन है एक ऑड है, तो इनका डिफरेंस तो ऑड होगा. तो यही हमें लिख देना है. एलिमेंट ऑफ दिस कांट बी रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 2,4 एज मॉडुलस ऑफ देयर डिफरेंस विल बी ऑड. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम. शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए where x is from z is integer between 0 and 12 given by two relations. दो दिए हुए हैं आपको. पहले में कहा हुआ है mod of a minus b is multiple of 4. दूसरे में कहा है a is related to b if a is equal to b. Both the relations are equivalence relation and find set of all elements related to 1 in each case. दोनों को हमें equivalence proof करना है और दोनों में 1 से related elements हमें निकालने हैं. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले हम. रिलेशन आर हमारा है a माइनस बी शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4. अब इसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो a माइनस ए 0 होगा विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 जब सिमेट्रिक चेक करना है हमें इसे एक बार a माइनस बी देखना है और एक बार हमें b माइनस ए देखना है. तो हम कैसे करेंगे?
let A belongs to A minus A is 0 is a multiple of 4 and hence R is reflexive. तो सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे, let A भी belongs to A such that A, B belongs to R. तो A minus B is a multiple of 4. So B minus A कैसा होगा, वो होगा minus of AB is also a multiple of 4. तो इससे हमें क्या मिला, B, A belongs to R. Therefore R is symmetric. So transitive A, B, C हमने तीन एलिमेंट ले लिए such that A B related है and B C related है. It means mod of A minus B is a multiple of 4. Mod of B minus C is also multiple of 4. अब देखिए अगर A minus B multiple है mod के साथ तो बिना mod के भी ये multiple होगा. It implies this is equal to 4m and B minus C is equal to 4k where m and k are some integers. अब ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं. आप दोनों को ऐड कर लीजिए. a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4m प्लस 4k. ये आ गया आपका a माइनस सी, ये आ गया 4m प्लस k. यहाँ से हमें क्या मिला, a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 which imply mod of A minus C is a multiple of 4 and hence it is transitive. तो देखिए यहाँ पर हमने किया तो यहाँ आ गया हमारे पास A minus C. A minus C belongs to R and hence R is transitive. अब क्योंकि तीनों हो गए so therefore R is an equivalence relation. अब बात आती है 1 के लिए. Elements related to 1 ये हमें निकालने हैं. Elements related to 1 कौन से elements 1 से related होंगे, जिनका डिफरेंस करने पे 4 का मल्टीपल हो तो उसका मॉड भी हो. जैसे 1 5 1 9 और 1 13. 13 बाहर हो जाएगा तो हम यहाँ तक ही लेंगे. 1 1 भी होगा. 1 माइनस 1 का मॉड क्या हुआ, इज अ मल्टीपल ऑफ 4. फिर उसके बाद देखेंगे हम 1 माइनस 5 का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4. उसके बाद एक है 1 माइनस 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो हमारे 1 से रिलेटेड कौन से एलिमेंट्स हुए, 1 5 9. तो जो हमारी 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनेगी उस पे हमारे पास होगा 1 5 एंड 9. समझ आ गया आपको. 1 से रिलेटेड वो एलिमेंट्स होंगे जिनका डिफरेंस करने पे हमें 4 का मल्टीपल मिल रहा है. सेकेंड पार्ट देखिए. सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है ए बी रिलेटेड तब है अगर वो इक्वल है. तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत ही आसान है, ए के इक्वल है. देयरफॉर आप इस तरह से लिखेंगे, लेट ए बिलोंग टू ए, A इक्वल टू ए. तो आपका A, A बिलोंग टू R हो गया एंड हेंस R इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए A B दो एलिमेंट ले लिए, वो आपस में रिलेटेड है. A, B बिलोंग्स टू R. इट मीन्स A इक्वल टू B विच मीन्स B इक्वल टू A. तो B, A भी R में आ गया. देयरफॉर R इज सिमेट्रिक ऑल्सो. ट्रांजिटिव पार्ट देखिए है ये बहुत ईजी, लेकिन लिखने में अगर आपने कोई चीज़ छोड़ी तो आपके लिए मुश्किल होगी. Let A, B, C, 3 elements belonging to A. A is related to B, B is related to C. A, B belongs to R, B, C belongs to R. अब A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A और C इक्वल हो गए. A इक्वल टू C, therefore A, C belongs to R. Therefore R is transitive and hence R is an equivalence relation. ये प्रूव कर दिया आपने. अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका. एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1. 1 से वो एलिमेंट रिलेटेड होंगे जो 1 के इक्वल होंगे. सो देयर इज ओनली 1 एलिमेंट विच इज इक्वल टू 1. तो आपका जो सेट है इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज 1. अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कुछ एग्जांपल्स देनी है. ये आपके सामने है. आप 1 बाय 1 ये करते हैं. सबसे पहले हमें एग्जांपल देनी है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें रिलेशन सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो. बहुत ही इजी एग्जाम्पल बनाई है आपके लिए. लेट ए बी अ सेट 1 2 3. अब इसके बहुत सारे सबसेट्स होंगे, उसमें से हमने एक ये सबसेट निकाला 1 2 2 1. अब पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होगा. रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 1 2 2 3 3 उसमें हो. अब इसमें तो 1 1 2 2 3 3 नहीं है, therefore this relation is not reflexive. तो हम लिख देंगे इस तरह से not reflexive because 1 1 2 2 3 3 is not in R. सिमेट्रिक चेक करते हैं. 1 2 है तो 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक तो है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. 1 2 है
2 1 है, हम कहते हैं ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। 1 2 2 1 तो 1 1 भी इसमें होना चाहिए, वो तो यहाँ नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। 1 2 है, 2 1 भी है, बट 1 1 इज नॉट इन आर। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड में हमें करना है ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, ऐसा एग्जाम्पल हमें बनाना है। चलिए उसी तरह से हमने सेट ए ले लिया, रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो 1 1 2 2 3 3 तो इसमें बिल्कुल भी नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। हम एक एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2। हमें ट्रांजिटिव बनाना है, 2 को 3 से रिलेट कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, वो हमें नहीं लिखना है यहाँ पर। सिमेट्रिक हमें बनाना नहीं है, तो 1 2 है तो 2 1 भी नहीं लिखेंगे, 3 2 भी नहीं लिखेंगे। अब हमें ट्रांजिटिव बनाना है, 1 2 है 2 3 है तो ए सी, यानी कि 1 3 वाला इसमें होना चाहिए, सो 1 3 लिख दिया हमने, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं ऑन द स्पॉट ही। तो हम इस तरह से इसे लिख देंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं है। अगर आपका 1 1 2 2 इसमें हो तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 3 3 भी होना चाहिए, तीनों प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई एक भी मिसिंग होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, वैसे तो इनमें से किसी के भी नहीं है। 1 2 है 2 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है, पर आप कोई एक भी लिखेंगे तो ओके है। आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का कैसे लिखेंगे, 1 2 है 2 3 है और 1 3 भी है, सो दिस इज ट्रांजिटिव। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमें एग्जाम्पल बनानी है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, हमें ऐसी एग्जाम्पल बनानी है। चलिए रिलेशन बनाते हैं हम। देखिए रिफ्लेक्सिव तो होगा, तो 1 1 2 2 3 3 ये तो हमने इसमें लिख ही लिया, ठीक। अब हमें बनाना है कि वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो हम एक ले लेते हैं 1 3 और 3 1 भी इसमें कर दिया, ठीक। अब हमें बनाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल हमें बनाना है। हम थोड़े और एलिमेंट जोड़ लेते हैं, 1 2 जोड़ लिया और 2 1 भी जोड़ लिया हमने इसमें। अब इसे चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1 1 है 2 2 है 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखना है, सिमेट्रिक के लिए 1 3 है 3 1 है 1 2 है 2 1 है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, देखिए 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 1 और 1 1 होना चाहिए, तो वो है हमारे पास। फिर 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज फर्दर रिलेटेड टू 3 एज वेल एज 1, 1 से भी तो 3 से भी रिलेटेड है ये। 3 इज रिलेटेड टू 1 एंड 3, तो अगर हम इसको और इसको देख रहे हैं, 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 से भी है तो 1 3 होना चाहिए, तो वो भी है हमारे पास, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ देखते हैं 3 1 है, 1 किस किस से रिलेटेड है, 1 1 से है, सो 3 1 है। फिर 1 2 से रिलेटेड है, 3 1 1 2, तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए। 3 2 तो यहाँ नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे। आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। बोलते हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं होगा, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए उसमें नहीं होगा। आपको लिखना सिखाते हैं, ए वही ले लिया, 1 1 2 2 3 3 कर लिया क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। अब हमें ट्रांजिटिव बनाना है, तो हम एक एलिमेंट लिखते हैं कोई, जैसे हमने एलिमेंट लिखा 1 2, फिर 2 को हम रिलेट कर देते 3 से, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकेगा। तो 1 2 2 3, अब 1 3 भी इसमें होना चाहिए, हो गया, तो ये ट्रांजिटिव बन गया। आप चेक कर सकते हैं 1 2 है, 2 किस किस से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है। अगर हम इन दोनों को देखेंगे 1 2 2 2, तो 1 2 होना चाहिए, वो है। 1 2 2 3 तो 1 3 होना चाहिए, वो है। लेकिन यहाँ पर 1 2 है 2 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है, सो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरह से लिख देंगे, बस आपको समझा दिया गया है, इन चीज़ों को यहाँ लिखना है। पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। फिफ्थ एग्जाम्पल हमें देनी है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है, 1 2 2 1। अब ये इसने तो सिमेट्रिक कर दिया इसको। ट्रांजिटिव के लिए 1 1 भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे 1 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, नो, बिकॉज 2 2 तो नहीं है इसमें, 3 3 भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये देखते हैं इसको, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 2 2 3 3 R में नहीं है।
इट इज़ सिमेट्रिक क्योंकि 1 2 और 2 1 दोनों ही आर में हैं. इट इज़ ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 इज इन आर, 2 1 इज इन आर. उसके बाद ए सी, इसके लिए ए ये होगा, सी ये होगा, 1 1 इज ऑल्सो इन आर. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट टाइम we will do question which are left in this exercise. Thank you so much.